नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में जेडीएस पार्टी की ओर से और बीदर दक्षिण के पूर्व शासक बंडेप्पा खाशिमपुर के नेतृत्व में आयोजित की गई प्रेस मीट। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने बिजली चोरी के आरोप के बाद भरा फाइन, चुकाने पड़े 68,526 रूपये। सिद्धरामैया की कुमारस्वामी को चुनौती, बोले बेटे के भ्रष्टाचार का सबूत दिखाएं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, लोगों को दी गई पार्टी की 6 गारंटियां। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे पीएम मोदी, कई बॉलीवुड सितारे भी रहेंगे मौजूद। जिनके नेता मूर्ख हैं उन्हें डर लगता है, हम शेरों की पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान में कांग्रेस पर बरसी स्मृति ईरानी। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार को बीदर के पत्रिका भवन में जेडीएस पार्टी की ओर से और बीदर दक्षिण के पूर्व शासक बंडेप्पा खाशिमपुर के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस अवसर पर बीदर जिला जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष रमेश सोलपुर और पार्टी के अन्य नेतागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए बंडेप्पा खाशिमपुर ने किसानों की समस्या और उनको होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी ली और राज्य सरकार से आग्रह किया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किसानों के खाते में हर महीने 25,000 रूपये जमा किए जाएंगे। इस अवसर पर बंडेप्पा खाशिमपुर ने इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ದಲ್ಲರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಯಾದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಂತ ಮುಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ, ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಸುಮಾರು ಸೋಯಾ 10% 20% ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ತೊಗರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಿಂತಿದೆ, ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಅರ್ಧ ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಅರ್ಧ ಏನು ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು, ತಾವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದಾಣಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ತೇವಾಂಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2,68,949 ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ 8 ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ತಾಲೂಕವಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಅವರೇನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ 330 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ 8 ತಾಲೂಕದು ಅವರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್? ರೈತರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ರೈತರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯಕ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇನದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನೀವು ತಂದಿರಿ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಬರಗಾಲ ಫಂಡು ಅಂತೇಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೀದರ್ಕ 4 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ
कर्नाटक राष्ट्र समिति पार्टी बीदर जिला इकाई की ओर से आज शुक्रवार 17 नवंबर को एक विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन बीदर तालुके के अमलापुर गांव के सर्वे नंबर 21 में खेती कर रहे अनुसूचित जाति किसानों से बिना किसी पूछताछ के और फॉरेस्ट की जमीन बताकर पानी पत्र रद्द करने वाला बीदर सहायक आयुक्त और बीदर तहसीलदार के खिलाफ किया गया और डीसी कार्यालय पहुंचकर डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित किसान ने मीडिया से बात की और अपनी समस्या के संबंध में बताया। केपी न्यूज कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಆ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಮಲಾಪುರ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ತಂದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಆ ದಾಖಲಾತಿ ಅವ್ರ ಕೈದಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ ತಾವು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದೇವು SC ಹೊಲಿಯ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಅವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆವು। ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಹೊಡಿಸ್ಯಾರ। ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KRS ಪಕ್ಷದವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು। ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅದ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ KRS ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೊಲ ಬಿತ್ತಿನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 52 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದೇವ್ರಿ। ನಮ್ಗೆ 1994 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ರಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ಯದ। ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಇದಾವೆ ಸರ್। ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಇದಾವೆ। ನಾವು ಅದೇ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂಜುಮಾನ್ ಎಬ್ಸಿದೆವು। ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು। ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ। ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ದೆವು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 52 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಗ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल एवं कॉलेज की ओर से अस्पताल में नई 5 डायलिसिस मशीनें लगाई गई है। यह मशीनें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई है। इन डायलिसिस मशीन के लगाने से डायलिसिस के मरीजों को सुविधा मिलेगी। इस मशीनों की यहां सख्त जरूरत थी। ब्रिम्स के डायरेक्टर शिव कुमार शेट्कर ने इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। फ्री आगे सर्विस ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ। ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಇದು ಇಲ್ಲ। ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 3 ಮಷಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರು ನಮಗೆ CSR ಫಂಡಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ। ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು MRI ಇದೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ SC ST ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ABRK ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಫ್ರೀ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಏನು 3,000-4,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷಿನಿಂದ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಹೌದು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ದೊಂದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ। ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರು ಮತ್ತು ಬರ್ನ್ಸ್ ವಾರ್ಡು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂಥ ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಂಟ್ ಅದು ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ। ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ। ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷನೇ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ। ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿತ್ತು। ಅದೆಲ್ಲ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 2 ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ RO ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನೀರು? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ತಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने दीपावली के दौरान अपने JP नगर स्थित आवास को रोशन करने के लिए अवैध कनेक्शन के जरिए बिजली जलाने के एवज में 68,526 रुपए का जुर्माना भरा है। हालांकि JDS की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने जुर्माने की राशि की गणना के तरीके का विरोध किया और कहा कि कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज प्राथमिक में कमियां हैं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर होने के कारण
कारण उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड सतकर्ता पुलिस थाने के सहायक कार्यकारी अभियंता को लिखे पत्र में कुमारस्वामी ने अपने कर्मचारियों द्वारा काम पर रखे गए बिजली ठेकेदार को दोषी ठहराया, जिसने परीक्षण के उद्देश्य से एक तार खींचा और उसे सीधे उनके घर के सामने बिजली के खंभे से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वे उनके बेटे के भ्रष्टाचार का सबूत पेश कर दें तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धरामैया ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि यदि ऐसा उदाहरण या सबूत पेश किया जाए कि यतीन्द्र ने अधिकारियों का तबादला कर पैसा कमाया है तो वे राजनीति से संन्यास लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने आरोपों को व्यक्तिगत रूप से उन्हें बदनाम करने का प्रयास बताया और कुमारस्वामी पर परपीड़क मानसिकता वाला होने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक के लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने की कुमारस्वामी की कोशिशों को देख रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह हार गई है। अब वह अपने गुप्त राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मेरे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इससे उनकी परपीड़ित मानसिकता उजागर हो गई है। कुमारस्वामी के झूठे आरोप और कुछ नहीं बल्कि मेरे बेटे को मानसिक रूप से परेशान करने का उनका क्रूर प्रयास है। कुमारस्वामी के आरोपों को खारिज करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, यतीन्द्र विकास के लिए स्कूलों की लिस्ट पर चर्चा कर रहे थे। जनता के सामने हुई इस फोन बातचीत को कुमारस्वामी तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से ट्रांसफर में भ्रष्टाचार की बात की खींच रहे हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में लगी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा था कि पार्टी राज्य के लोगों की प्रगति, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को दी गई पार्टी की 6 गारंटियां भी गिनाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने जाएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने पीएम मोदी के मैच देखने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। पीएम मोदी के अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही फाइनल मैच को देखने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन के भी आने की संभावना है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में पहुंची है। इंडिया ने टॉस जीतकर 4 विकेट पर 397 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 327 रन बनाकर आउट हो गई थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 18 अक्टूबर को 7 साल की सजा होने के बाद
जेल में बंद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल आजम ने सजा के आदेश के खिलाफ अपील की है। तीनों ने अलग अलग रामपुर जिला जज के यहां सजा के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। जिला जज की कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल आजम की ओर से दाखिल अपील को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दी। बता दें कि तीनों ने अलग अलग अपील दाखिल की है, जिस पर अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। 18 अक्टूबर को सुनाई गई थी 7 साल की सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए जाने वाले डीप फेक वीडियो को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील मीडिया से की है। शुक्रवार 17 नवंबर को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में दिवाली मिलन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ने दिवाली के दीप और डीप फेक के डीप को एक दूसरे से जोड़ते हुए कहा कि मीडिया को इस संकट के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को राष्ट्रीय पर्व कहा है। डीप फेक वीडियो सिंथेटिक मीडिया है, जिसमें मौजूद छवि या वीडियो में किसी व्यक्ति को किसी और की तस्वीर से बदल दिया जाता है। कुछ दिनों पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ब्रिटेन एक मशहूर शख्सियत के वीडियो को एडिट करके उसमें अभिनेत्री का चेहरा लगा दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद पीएम मोदी का इस पर बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। युद्ध के मैदान में अब इन्फेंट्री सोल्जर को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दुश्मन के कैट हो या फिर कोई बड़ा हमला, उनको बर्बाद करने के लिए सेना को अटैक हेलीकॉप्टर मिलेगा। अगले साल थल सेना को 6 अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे। इससे भारतीय सेना की ताकत में यकीनन इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है। थल सेना को अपनी कार्रवाई में तेजी के लिए अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। इससे दोनों में तालमेल बेहतर होगा और नतीजा भी शानदार निकलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि जिनके नेता मूर्ख है उन्हें डर लगता है, हम शेरों की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। टोंक के देवली में बीजेपी के उम्मीदवार विजय बैंसला और राजसमंद के चारभुजा में पार्टी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ईरानी ने विधानसभा चुनावों को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बताया। ईरानी ने प्रदेश में एक ऐसी सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया जो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। उन्होंने वादा किया बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में जेडीएस पार्टी की ओर से और बीदर दक्षिण के पूर्व शासक बंडेप्पा खाशिमपुर के नेतृत्व में आयोजित की गई प्रेस मीट। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने बिजली चोरी के आरोप के बाद भरा फाइन, चुकाने पड़े 68,526 रुपये। सिद्धरामैया की कुमारस्वामी को चुनौती, बोले बेटे के भ्रष्टाचार का सबूत दिखाएं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, लोगों को दी गई पार्टी की 6 गारंटियां।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे पीएम मोदी। कई बॉलीवुड सितारे भी रहेंगे मौजूद। जिनके नेता मूर्ख हैं, उन्हें डर लगता है। हम शेरों की पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान में कांग्रेस पर बरसी स्मृति ईरानी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।